हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर फंडामेंटल्स, मेमोरी, सीपीयू, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग which will be helpful for you to appear in any government or any private exam or for placement. So let's start with computer memories, which is our first topic. Computer memory consists of two types of memory, primary memory and secondary memory. Primary memory consists of DRAM, SRAM, DRAM, and secondary memory consists of PROM, EPROM and EEPROM. Now the first question is, EEPROM or E2PROM is a non-volatile memory, temporary memory, volatile memory or flash memory. So the correct answer is non-volatile memory. Set of instructions given to the computer for a specific task is called hardware, information, output or software. So the correct answer is software. Now the next question is, which is not volatile memory? So the options are monitor, RAM, ROM, all options. So the correct answer is ROM, which is read only memory, and it can store after getting power off also. So that is called non-volatile memory. Now volatile memories are those memories which cannot retain the memory after getting switched off. Next question is, data or instructions given to the computer for a particular task is called output, software, input or output devices. So the correct answer is input. इनपुट के फॉर्म में हम कंप्यूटर को टास्क अपने बताते हैं, हम इनपुट देके उसे बताते हैं कि हमें कौन सा प्रोग्राम करवाना है, कौन से हम इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैम इज़ अ टाइप ऑफ डैश मेमोरी. वॉलेटाइल मेमोरी, ऑल ऑप्शंस, मॉनिटर, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. तो मैंने इससे पहले आपको बताया रैम इज अ टाइप ऑफ मेमोरी मींस आफ्टर गेटिंग स्विच्ड ऑफ रैम जो है वो अपनी मेमोरी रिटेन नहीं कर पाता है, इसे इसलिए हम इसे बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी. Now, raw facts and figures are called input, data, output or information. So the correct answer is data. Data is raw facts and figures. तो data जो हमारा होता है वो बहुत ही अनफॉर्मेटेड होता है और उसके बाद हम प्रोसेसिंग करके उस एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डेटा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Now the next question is, which is a volatile memory? वॉलेटाइल मेमोरी, अगैन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल पे गाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंक्लूडिंग रेलवेज, बैंक, डिफेंस एट्सेट्रा. फर्स्ट ऑप्शन इज यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, डी रैम. सो द करेक्ट आंसर इज डी रैम, विच इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. Next question is, RAM is permanent memory, non-volatile memory, temporary memory or portable memory. So the correct answer is temporary memory. Volatile memory को ही हम temporary memory बोलते हैं because ये एक बार switch off होने के बाद memory जो है वो retain नहीं कर पाता है. So it is called temporary memory. Next question is, physical parts of computer or tangible parts of computer are called software, hardware, programs, none of these. So the correct answer is hardware. हार्डवेयर का मतलब होता है फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिन्हें हम टच कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर का मतलब होता है विजिबल, ओनली विजिबल लाइक विजिबल थिंग्स विच इज सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट एंड गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड माउस, monitor, keyboard or computer. So it is a very very important question guys, and the correct answer is computer. Computer is an electronic machine which takes raw data and gives us useful information. Now the next topic is our CPU. तो CPU के अंदर जितने भी components होते हैं उनसे related अब हम MCQ देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा important है और आपसे सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और प्लेसमेंट में भी पूछे जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर CPU टॉपिक. स्टोर इन्फॉर्मेशन, कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन इनटू स्टोरेज. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन. ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि सीपीयू का मेन फंक्शन क्या है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर परफॉर्म्स विच ऑपरेशन? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. नेक्स्ट ऑप्शन इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. लास्ट ऑप्शन इज इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, input, processing, output and storage. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैम स्टैंड्स फॉर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइज, अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में भी बताया. रीड एक्सेस मेमोरी, नन ऑफ दीज ऑप्शन. रेडी एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, ड्राइवर्स. सो द करेक्ट आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एग्जीक्यूट नहीं होते हैं.
Next question is a storage space that contains organized files is called catalog, directory, folder, all these options. So the correct answer is guys last, catalog, directory, folder. सारे ही फॉर्म्स में हम अपने जो फाइल्स हैं उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करवा सकते हैं. तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस. Next question is the software which provides an environment to work on a computer is GUI, hardware, database, Microsoft Windows. So the correct answer is Microsoft Windows. आपको पता ही है जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कौन से OS पे काम करता है, मोस्टली Microsoft Windows पे. Now next question is computer software designed specifically for the users to perform a particular task is called विंडोज़, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन है पर्टिकुलर टास्क. तो पर्टिकुलर टास्क के केस में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Next question is in Windows, start button function is to search a program, start a new program, all these options, shut down or restart the computer. Again guys, आप लैपटॉप और कंप्यूटर आज की डेट में हर कोई यूज़ करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज ऑप्शन. हम स्टार्ट बटन का यूज़ करके ये सारे काम करवा सकते हैं कंप्यूटर्स में. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट अवेलेबल फॉन्ट इन MS वर्ड इज़. इसका आंसर तो सबको दे देना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज़ 8. बिना ऑप्शन पढ़े ही मैं आपको बता देती हूँ. MS वर्ड में जो सबसे छोटा साइज़ होता है टेक्स्ट का दैट इज़ 8. 8 के बाद जितने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं, बट 8 से नीचे आप कोई भी साइज़ नहीं देखेंगे MS वर्ड में. Next question is which device gives output on the paper? Option A printer, next monitor, speaker, scanner. So the correct option is printer. प्रिंटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो हमें आउटपुट देता है पेपर की फॉर्म में. हम कोई भी प्रिंट कमांड करते हैं उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है पेपर की फॉर्म में. सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जो SSB EduTech के नाम से ही है. इंस्टाग्राम पे हमारा यूज़र नेम है _SSB.edutech_. आप अगर ये सारी वीडियोस की PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं SSB लर्निंग के नाम से, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है. सो द आर नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये जो टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर. सो गाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये सारे टाइप्स हैं. ये भी आपसे बहुत बार वाइवा में पूछ लिया जाता है. अगर आप किसी प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज रैम इज़ ऑल्सो नोन एज. अगेन रैम के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. इंटरनल मेमोरी, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी. सो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है. रैम को हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं. Next question. A type of system software that enable the OS to communicate with the peripheral is utility program, Android, drivers or MS Office. So the correct answer is drivers. ठीक है, drivers की मदद से ही हम जो operating system को है peripheral से communicate करवाते हैं. So it is a type of system software. Remember, drivers are a type of system software. Next question. A type of software used to draw pictures, 3D images and animation is system software, graphics software, gaming software, word processing software. नाम से ही पता चल रहा है. द आंसर इज ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर. ग्राफिक की मदद से ही आप इमेज, एनिमेशन, पिक्चर्स पे काम करते हैं. Next question is a type of system software which enable a user to analyze, configure and maintain the computer. Options are Windows, drivers, utility programs, Linux. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम्स. यूटिलिटी प्रोग्राम्स की मदद से ही हम एनालाइज करवाते हैं, कन्फिगर करते हैं और मेंटेन करते हैं कंप्यूटर को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल्स द हार्डवेयर कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोवाइड्स GUI. GUI का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ऑप्शंस आर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और MS ऑफिस. द करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम OS. Next question is software which include dictionaries, encyclopedias and maps. Options are system software, graphics software, word processing software, reference software. Guys, it is a very very important question and the correct answer is reference software. Maps, encyclopedias, dictionary जैसे जो software होते हैं वो reference लेके काम करते हैं, so it is called reference software. Next question is Windows provides which type of user interface? CLI, command line interface, form based, GUI, graphical user interface और coding interface. So the correct answer is graphical user interface. Windows पे हम काम ही इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उसके पास है graphical user interface.
Next question is, which utility is used to detect physical and logical programs of a disk? Word processing software, program manager, disk scanner और antivirus? So the correct answer is disk scanner. disk scanner की मदद से ही हम disk में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो फ्रैगमेंटेशन हो. Next question is, a type of utility programs in Windows used to view and manage images is called इमेज व्यूअर, फाइल व्यूअर, वीडियो व्यूअर और डॉक्यूमेंट व्यूअर्स. तो यहाँ पे इमेज की बात आ रही है, तो ऑप्शन इज ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन, इमेज व्यूअर. Next question is, which type of memory is directly accessed by the CPU? It is a very important question and it is asked in many exams. Options are USB, primary memory, external memory or auxiliary memory. So the correct answer is option B, primary memory. Guys, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है. IBPS PO में भी ये क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर से भी बहुत सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. आपके बैंकिंग में इससे कंप्यूटर नेटवर्क से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज बैंकिंग जो है वो इंट्रानेट पे ही काम करता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंप्यूटर नेटवर्क के MCQ क्वेश्चंस करके जाएँ, और इससे ND और CDS में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. So the first question is, largest network of computer around the world that communicate and share data and information and other sources is called internet, web page, website, www. So the correct answer is internet. इंटरनेट की मदद से ही हम अपने डेटा जो है वो शेयर कर पाते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेम्पलेट्स इन PPT कंटेन्स ऑल ऑप्शंस, इफेक्ट्स, लेआउट, फॉन्ट स्टाइल्स एंड कलर्स. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. आंसर इज आंसर ए, ऑल ऑप्शंस. सो PPT में हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं, लेआउट कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल कर सकते हैं, कलर्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ PPT इन MS ऑफिस. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. MS ऑफिस में PPT क्या होता है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, PPT इज MS पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन. तो PPT पे आपने बहुत सारा काम किया होगा, तो PPT स्टैंड्स फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. Next question is, by default in which view MS Word document opens? Again, very important question. Options are web layout, draft view, print layout view, outline view. Next so question is www stands for all options layout. कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट हम जब ओपन करते हैं तो प्रिंट लेआउट व्यू के फॉर्म में ओपन होता है. वर्ल्ड वाइड वेब. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, कलर और अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड वेबसाइट ऑन द इंटरनेट इज नोन एज ऑल ऑप्शंस. So the correct answer is document formatting. So the correct answer is all options. हम वेब पेजेस के कलेक्शन और वेबसाइट को इंटरनेट पे ऑल ऑप्शंस के नाम से भी जानते हैं. www को हम W3 भी बोल देते हैं और वेब भी बोल देते हैं कई बार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल. आपने MS वर्ड में बहुत बार काम किया होगा, तो आप इसका एक्सटेंशन मुझे बताइए क्या होता है. बिना ऑप्शन पढ़े इसका जो आंसर है वो है docx, विच इज़ ऑप्शन बी. आप किसी भी MS वर्ड फाइल को सेव करते हैं तो वो लास्ट में एक्सटेंशन सेव होता है .docx के फॉर्म में. Next question is, multiple series of slides in PPT is called slide deck, slideshow, extension or slide layout. So the correct answer is option A, slide deck. Multiple series of slide in PPT is called slide deck. It is a very important question guys, and PPT से related बहुत सारे questions पूछे जाते हैं. आपको इसकी shortcut keys भी याद होनी चाहिए. Which is word processing software? Last question. Linux, MS Word, MS Security Essential, MS Windows. So the correct answer is option B, MS Word. Word processing software बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है. इट इज़ MS Word. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको आने वाले सारे एग्जाम्स के अपडेट्स मिलेंगे. अगर आप SSB एस्पिरेंट हैं, डिफेंस एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए वो टेलीग्राम ग्रुप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि